راجہ رضوان عباسی صاحب اپنے بڑے قیمتی وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا جنہوں نے تشریف لائے. پنڈی اسلام آباد میں کرمنل لائز میں آن دا ٹاپ نام آتا ہے آپ کا, اور ہم مشکور ان کے تشریف لائے. اور آج ان کا لیکچر ہے. ہم پہلے ٹائم شروع کر لیں چونکہ آج جمعہ تو مبارک بھی ہے, تو تھوڑے سے ٹائم میں انہوں نے ایک آپ کے لیے اعلان ہے کہ کل کلاس نہیں ہو سکے گی. یہ رجسٹرار صاحب ہیں ہماری جوڈیشل کمپلیکس کے, انفارم بھی کہ عمران خان صاحب والا کل والا کیس F8 کے بجائے شاید یہاں سنا جائے. ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن ہم رسک نہیں لے رہے آپ لوگوں کو تاکہ تکلیف نہ ہو. تو کل کی کلاس جو ہے ہم کال آف کریں گے. منڈے کو 1 بجے آپ نے تشریف لانا ہے. تو ابھی میں مزید وقت ضائع کیے بغیر ریکویسٹ کروں گا طالب محمد رضوان عباسی صاحب سے, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان تشریف لائیں اور اپنے لیکچر کا آغاز کریں. جناب رضوان عباسی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سیکرٹری صاحب, اور آئی ویلکم نیو انٹرنس. جو آج کا سبجیکٹ ہے جس پہ میں نے آپ کو لیکچر دینا ہے, دیٹ از کرمنل ٹرائل. کرمنل ٹرائل میں بھی آئی ول ٹاک اباؤٹ سیشنز ٹرائل, اور اس دوران آپ کسی قسم کا بھی کوئی کویشچن ہو تو آپ پٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس ٹرائل کے علاوہ آپ کو کبھی بھی کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو, کرمنل سائٹ کچھ چیز پوچھنی ہو, کوئی ایمبیگوٹی ہو, کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو, تو یو آر آلویز ویلکم ٹو آسک. جدھر بھی ہم ہیں جیسے بھی ہیں, تو انشاءاللہ جتنا ہمیں علم ہے وہ آپ کو ضرور ہم بتائیں گے. کرمنل جتنے بھی پروسیجر ہے اس کے 3 phases ہیں. نمبر 1, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کوڈ آف کرمنل پروسیجر. اس کی ایکسیپشنز بھی موجود ہیں. FIA کیسز میں ڈفرینٹ پروسیجر ہے. ٹرائل کا تو سیم پروسیجر ہے لیکن کچھ کانسیپٹس ڈفرینٹ ہیں. پہلا جو فیز ہے دیٹ از کالڈ انویسٹیگیشن فیز. جو سیکنڈ فیز ہے دیٹ از کالڈ انکوائری فیز. جو تھرڈ فیز ہے دیٹ از کالڈ ٹرائل فیز. اب جو انویسٹیگیشن فیز ہے اس میں دیر آر 2 kind of offenses, one cognizable and second non-cognizable. جو cognizable offenses ہیں اس میں FIR is to be lodged immediately after conveying this information to station house officer, اور انویسٹیگیشن اس کے ساتھ سٹارٹ ہو جاتی ہے. نان کاگنیزیبل offenses میں پہلے میجسٹریٹ کی پرمیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ cognizable offenses, جو کہ زیادہ فیملیئر فینومینا ہے which you people face in your daily lives. تو cognizable offense میں whenever FIR is registered, then investigating officer start investigation, and this investigation means collection of evidence either in favor or against the accused. جو بھی یعنی مقصد کیا ہے کہ جس جرم کی انفارمیشن انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو یا اسٹیشن ہاؤس آفیسر کو ملی ہے اس نے اس جرم کی تہ تک پہنچنا ہے کہ نمبر 1 کیا یہ جرم ہوا ہے, نمبر 2 اگر یہ جرم ہوا ہے تو کیا ایسے ہی ہوا ہے جیسے یہ انفارمیشن کنوے ہوئی, اور کون ریسپانسبل ہے فار کمیشن آف دس آفینس. دس از دی پرائمری جاب آف انویسٹیگیٹنگ آفیسر. تو اس کے لیے وہ اسپاٹ وزٹ کرتا ہے, 161 کی اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کرتا ہے, بعض کی 164 کی اسٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوتی ہیں, سائنٹیفک ایویڈنس ہے. تو تمام ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے بعد انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے وہ
रिपोर्ट सबमिट करता है, फर्स्टली इंटरम रिपोर्ट, अगर उस वक्त तक 14 डेज में, विद इन 14 डेज अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती तो इंटरम रिपोर्ट होती है विच इज सबमिटेड बिफोर द कोर्ट। और उसके बाद जो है ये सिलसिला जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है तो कोई उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बार नहीं है कि इतनी रिपोर्ट सबमिट होने के बाद कोई और रिपोर्ट सबमिट नहीं हो सकती, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग प्रोसेस जो कि चलता रहता है। समहाउ एक्यूज अगर इस दौरान अरेस्ट हो जाए तो उसकी रिमांड होता है, उसका 167 सीआरपीसी के मुताबिक, रिमांड लफ्ज तो लॉ में मौजूद नहीं है, उसकी फिजिकल कस्टडी जो है दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी। उस स्टेज पे अगर कोर्ट ये समझे कि देयर इज नो सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, तो एक्यूज कैन बी डिस्चार्ज्ड बाय द एरिया मजिस्ट्रेट, बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 63 ऑफ सीआरपीसी। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये समझे कि एविडेंस इज डेफिशिएंट, गिरफ्तार तो हो गया लेकिन उसने कोई ऐसे शवाहिद पेश किए हैं या उसके पास इतने शवाहिद नहीं हैं जिससे पता चले कि ये ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कमीशन ऑफ दिस ऑफेंस, तो बाय इन्वोकिंग सेक्शन 169 ऑफ सीआरपीसी वो उसको रिलीज भी कर सकता है। स्टेशन हाउस ऑफिसर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है ये वो पावर ऑफ बेल है विच इज वेस्टेड विद द पर्सन इन यूनिफॉर्म विद द पुलिस ऑफिशियल्स, उसका बॉन्ड लेके और उसको उसी वक्त रिलीज कर सकता है। अब 173 की रिपोर्ट सबमिट हो गई, पर्सन जो है वो उनका रिमांड हो गया, कोई रिकवरी होनी थी वो हो गई, पर्सन वॉज फाउंड गिल्टी, तो उसका नाम होगा कॉलम नंबर 3 में इन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी, उसके डिफरेंट कॉलम्स। अगर उसके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस है, आ गई है, तो फिर उसका नाम जो है कॉलम नंबर 3 में प्लेस किया जाएगा। बाज एक्यूज्ड एब्सकॉन्डर हो जाते हैं, उनकी हद तक प्रोसेस इनिशिएट होता है, परपेचुअल वारंट इशू होते हैं बाय द कोर्ट, और वो जो प्रोसेस है दैट इज मेंशन इन सेक्शन 87 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो उसका नाम भी कॉलम नंबर 2 होता है लेकिन इन रेड इंक। जो एब्सकॉन्डर्स हैं उनका नाम रेड इंक में होगा इन कॉलम नंबर 2 ऑफ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी, और जिनकी हद तक सफिशिएंट एविडेंस हो उनका नाम होगा कॉलम नंबर 3 में। अब जो भी रिपोर्ट्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट सीआरपीसी, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं 173 की, चाहे वो सेशन ट्रायल हो, मैजिस्ट्रेरियल ट्रायल हो तो वो तो आनी मैजिस्ट्रेट के पास है, लेकिन अगर सेशन ट्रायल भी हो तो ये जो 173 की रिपोर्ट है ये कभी भी सेशन कोर्ट में डायरेक्ट फाइल नहीं होती, दैट इज ऑलवेज सबमिटेड बिफोर द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, और मैजिस्ट्रेट की कोर्ट जो है वो फिर अंडर सेक्शन 190 सब सेक्शन 3 रेड विद सेक्शन 193 ऑफ सीआरपीसी ये जो रिपोर्ट है ये सेंड अप करते हैं टू द कोर्ट ऑफ सेशंस, और फिर सेशन जज साहब या अपने पास वो केस रखते हैं या किसी एडिशनल सेशन जज साहब को इंटरेस्ट कर देते हैं, वहां से फिर इंक्वायरी फेज का आगाज होता है। जो भी ट्रायल कोर्ट है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रायल, जो भी ट्रायल कोर्ट है वो देखती है कि किस एक्यूज को समन किया जाना जरूरी है व्हाइल इशूइंग द प्रोसेस, जिसके खिलाफ केस प्रोसीडेबल हो प्राइमा फेशी, तो कोर्ट उसकी हद तक प्रोसेस इशू करती है अंडर सेक्शन 204 ऑफ सीआरपीसी। ये जो प्रोसेस इशू होता है इससे लेके फ्रेमिंग ऑफ चार्ज तक का जो फेज है दिस इज कॉल्ड इंक्वायरी फेज। इसमें इंक्वायरी फेज में 2-3 चीजें कोर्ट देखती है ट्रायल कोर्ट। नंबर 1 प्रोसेस किसकी हद तक इशू होना है, और नंबर 2 जो है चार्ज किस प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत फ्रेम होना है। तो ये जो फेज है एफआईए में, अगर पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनकी हद तक कोई प्रोसिक्यूशन है तो पहले इंक्वायरी होती है अंडर फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन रूल्स 2002 के मुताबिक। बट आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं आप कॉम्प्लिकेट नहीं करता फॉर यू सिंस यू आर न्यू एंट्रेंस, तो आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल प्रोसीजर
which is provided in Code of Criminal Procedure. तो ये दो चीजें इंक्वायरी फेज में ट्रायल कोर्ट देखती है. फर्स्टली दैट अगेंस्ट whom process is to be issued and under which provision of law charge is to be framed against the accused. अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, इशुएंस ऑफ प्रोसेस के बाद और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है दैट इज टू बी सप्लाइड टू द अक्यूज्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, which includes statements under section 161 और 164 of CRPC, फर्स्ट इंस्पेक्शन नोट, 173 की रिपोर्ट और जितने डॉक्यूमेंट उसमें प्रोवाइडेड है उनकी कॉपीज जो हैं अटेस्ट वो एक्यूज को, अगर कोई साइंटिफिक एविडेंस है तो जजमेंट्स इसमें तो नहीं प्रोवाइडेड, लेकिन जजमेंट्स हैं एपेक्स कोर्ट की कि जो मटेरियल है अगेंस्ट द एक्यूज दैट इज टू बी प्रोवाइडेड टू द एक्यूज. तो उसमें बहुत सारी जजमेंट्स, क्योंकि आर्टिकल 10A के बाद फेयर ट्रायल जो है वो दैट इज राइट ऑफ द एक्यूज, फंडामेंटल राइट है. तो उसमें जितना इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है इट इज टू बी गिवन टू द एक्यूज बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ताकि एक्यूज अपने आप को एक्विप कर ले टू फॉर हिज डिफेंस. और इन दी लाइट ऑफ इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल, क्योंकि जब चार्ज फ्रेम होता है तो उसमें साथ ही एक्यूज की एक प्ली भी रिकॉर्ड होती है, उससे पूछा जाता है कि इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो, कोई तुम्हारा प्ली कुछ ऐसी है. तो वो एक्यूज जो है वो अपनी प्ली, जब तक उसको ये पता नहीं होगा कि विच काइंड ऑफ इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल एंड व्हाट सब्सटेंस इज अगेंस्ट हिम, तो वो अपना डिफेंस या वो प्ली जो है वो उसका कैपेबल नहीं होता. तो 265C की कंप्लायंस के बाद चार्ज फ्रेम होता है, और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के मुताबिक जो है ये कोई मैकेनिकल एक्सरसाइज नहीं है. जो सेक्शंस ऑफ लॉ आईओ ने या पुलिस वालों ने लेबल किए हैं, ट्रायल कोर्ट बाउंड नहीं है कि उन्हीं सेक्शंस में चार्ज फ्रेम करे. ट्रायल कोर्ट चाहे तो ट्रायल कोर्ट ने स्कैन करना है रिकॉर्ड, और इन दी लाइट ऑफ दैट रिकॉर्ड जो ऑफेंस मेड आउट होता है प्राइमा फेशी, जिसमें प्रोसीडेबल मटेरियल मौजूद है, तो उन सेक्शंस ऑफ लॉ में ट्रायल कोर्ट जो है वो चार्ज फ्रेम करती है. ट्रायल कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय द ओपिनियन और बाय द रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. उसको यानी उसमें जो मटेरियल तो वही देखना है ट्रायल कोर्ट ने, क्योंकि बाउंड क्यों नहीं है ये भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको. अंडर सेक्शन 190 ऑफ CRPC देयर आर 3 मोड्स ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस. वन है उन पुलिस रिपोर्ट, सेकंड है इंफॉर्मेशन कंप्लेंट फाइल बाय एनी पर्सन, और थर्ड है कोर्ट बाय इट्स ओन, यानी कोर्ट को भी किसी जुर्म की इत्तला मिली तो कोर्ट बाय इट्स ओन भी कॉग्निजेंस ले सकती है. और इस तमाम चीजों के पीछे मंशा एक ही है कि क्राइम शुड नॉट गो अनपनिश्ड. समहाउ आफ्टर compliance of section 265C of CRPC, charge is framed against the accused. अब आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज प्रोसिक्यूशन को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो एविडेंस पेश करें, और उसमें जो बहुत वास्ट प्रोविजन ऑफ लॉ है दैट इज सेक्शन 265F of CRPC. All witnesses who are acquainted with the facts, court shall ascertain from the public prosecutor और complaint की सूरत में from the complainant, names of any person who are acquainted with the facts of the case, तो वो जिनका नाम complaint की सूरत में या public prosecutor state case की सूरत में कोर्ट को बताएगा, court shall summon those persons as a witnesses. तो फुल अपॉर्चुनिटी एड्यूस की जाएगी टू द प्रोसिक्यूशन टू प्रोड्यूस द एविडेंस ऑफ देयर ओन चॉइस. लेकिन उसमें अगर ट्रायल कोर्ट ये समझे कि ये जो एविडेंस है दैट इज वेक्सेशियस, यानी इसमें एविडेंस फलां जो बंदे की है जिसको पेश करने का मकसद जो है ट्रायल को डिले करना है, तो कोर्ट रिफ्यूज कर सकती है टू समन दैट पर्सन एज ए विटनेस. तो these are discretionary powers of the court, लेकिन वो discretionary powers जो है those are limited. Those exceptions are also provided in section 265F of Code of Criminal Procedure. जब prosecution की evidence complete हो जाती है और prosecution अपनी evidence close करती है, तो then
जितना भी incriminating material accused की हद तक आता है, that is put to the accused under section 342 of CRPC, ताकि accused की जो point of view है वो रिकॉर्ड पे आ जाए, वो plea of accused होती है. उसमें अगर accused ये कह दे कि मैंने ये जुर्म किया है तो वो कन्फेशन के जुमरे में नहीं आता, वो प्ली ऑफ एक्यूज होगा. समहाउ प्ली ऑफ एक्यूज लेने के बाद उसी 342 में एक्यूज से पूछा जाता है कि वेदर यू विल अपीयर इन सपोर्ट ऑफ योर केस अंडर सेक्शन 340 सबसेक्शन 2, यानी एक्यूज अपने ही केस में अपनी हद तक एज ए विटनेस पेश हो सकता है 340(2) CRPC में. Then his statement will be recorded on oath, और जो prosecution या complainant side है वो उसको cross examine करेंगे इस सूरत में, क्योंकि अब यहाँ पे accused का जो status है वो हो गया है witness का. Second, accused को एक और question जो बहुत necessary है वो पूछा जाएगा कि अगर वो खुद तो अपने defense में पेश नहीं होना चाहता तो क्या वो कोई और defense evidence पेश करना चाहता है, तो accused may opt to produce any evidence in support of his contention, चाहे वो documentary evidence हो, चाहे वो verbal evidence हो किसी के, तो accused is having a choice. फिर accused अगर अपना defense जो है वो पेश करता है तो फिर accused इस अपनी evidence को close करेगा और जो final arguments हैं फिर open जो case करेगा वो accused करेगा अगर उसने defense में एविडेंस दी है. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की सूरत में नहीं, अगर वर्बल एविडेंस एक्यूज ने दी है तो एक्यूज विल ओपन द केस और जो प्रोसिक्यूशन है दे विल रिस्पॉन्ड. और अगर एक्यूज ने डिफेंस एविडेंस पेश नहीं की तो फिर प्रोसिक्यूशन विल ओपन द केस और एक्यूज जो है वो उसका रिस्पॉन्ड करेगा, उसका रिप्लाई देगा और उसके बाद फाइनल जजमेंट पास होगी. जो जजमेंट है अंडर सेक्शन 266 ऑफ CRPC जो कोर्ट ने पास करनी है, उसमें अगर वो जजमेंट ऑफ कन्विक्शन है तो एक्यूज को कहा जाएगा कि वो अपीयर हो बिफोर द कोर्ट. अगर उसकी एविडेंस एग्जेम्प्टेड है तो उसके प्लीडर को कहा जाएगा कि टू अपीयर बिफोर द कोर्ट. और अगर एक्यूज अपीयर नहीं होता या उसका प्लीडर अपीयर नहीं होता तो वो जो जजमेंट है वो इस वजह से इलीगल नहीं होगी कि एक्यूज जो है ही डिड नॉट अपीयर बिफोर द कोर्ट, तो वो जजमेंट वैलिड होगी, ये कोई ऐसी इलीगलिटी नहीं है. अगर जजमेंट ऑफ एक्विटल है तो उसके लिए एक्यूज को समन करने की भी जरूरत नहीं है. इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज ही कैन बी एक्विटेड बाय द ट्रायल कोर्ट. तो ये एक शॉर्ट सा मैंने आपको समरी देती है अबाउट द क्रिमिनल ट्रायल. इसमें अगर कोई एम्बिग्विटी कोई ऐसा क्वेश्चन है, अब बाकी देखें जो लॉ है वो तो दैट इज सो वास्ट, ये तो समंदर है. एक एक प्रोविजन ऑफ लॉ के ऊपर घंटों डिस्कशन हो सकती है, कई दिनों तक डिस्कशन हो सकती है. हर केस में आप जब लॉ को पढ़ते हैं तो आपको एक वो इसकी खूबसूरती ये है कि हर केस के मुताबिक वो जो लॉ है वो आपको एक डिफरेंट आइडिया और डिफरेंट मीनिंग पेश करता है. तो इस हद तक जहाँ पे जो हमारी अभी डिस्कशन हुई, वालेकुम अस्सलाम, इज देयर एनी क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क प्लीज. Is there a time limit on when the accused can produce evidence, or he can produce evidence at any time? That is after 342. In 342 of CRPC, accused is given option to produce evidence in his defense. तो अगर वो डिफेंस एविडेंस accused पेश करेगा तो वो 342 के बाद ही पेश करेगा और उसमें भी कोर्ट shall summon that person as a witness. लेकिन अगर कोर्ट ये समझे कि दैट इज वेक्सेशियस और इसका पर्पस जो है दैट इज टू डिफीट द एंड ऑफ जस्टिस और टू डिले द ट्रायल, तो कोर्ट मे रिफ्यूज टू समन एनी पर्सन एज ए डिफेंस विटनेस एज वेल. Does it have to be at the same time that the prosecution produces its evidence, or can it be later on? No, it is later on after statement under section 342 of CRPC. I have already stated and told that after framing of charge, first opportunity is given to the prosecution to produce the evidence. After closure of their evidence,
then statement under section 342 of CRPC is recorded, and in 342 option is given to the accused to produce the evidence if he wants or opts to, and this is the stage when accused may or may not produce his evidence. 342 के बाद सर जो मुचलका होता है, जो श्योरिटी बॉन्ड होता है, उस पे सर जो गवाह के अंगूठे भी लगते हैं, उनका साइन भी होता है. इन केस सर अक्यूज्ड एब्सकॉन्ड कर जाए तो क्या कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उन गवाहों को जो है समन करके लिया? देखें, वो दैट प्रोसीजर्स प्रोवाइडेड इन सेक्शन 514 ऑफ सीआरपीसी. वो जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो श्योरिटी के अगेंस्ट होती हैं, यानी वो श्योरिटी उन गवाहों का, यानी वो नहीं ट्राई नहीं विटनेसेस जो हैं वो अगर वो श्योरिटी के कि नहीं मैं तो ये बता ही नहीं था, मैंने तो ये श्योरिटी नहीं दी, वो दोज विटनेसेस हैव टू आइडेंटिफाई द श्योरिटी, दैट्स ऑल. अगर श्योरिटी जेन्युइन पर्सन है तो वो विटनेसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. लेकिन अगर वो श्योरिटी जिसका नाम लिखा हुआ है वो कहे कि आई एम नॉट ए श्योरिटी, आई नेवर अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, देन विटनेसेस विल बिकम रिस्पॉन्सिबल हु आइडेंटिफाइड हिम एज ए श्योरिटी. तो उस सूरत में विटनेसेस आर रिस्पॉन्सिबल. लेकिन अदरवाइज इट इज दीज आर द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द श्योरिटी, और वो भी श्योरिटी को नोटिस होता है, श्योरिटी बॉन्ड फोरफीट होते हैं, और आफ्टर नोटिस जो है उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे तो हमारे यहाँ तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेते हैं. कोर्ट कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी के पेपर्स लेने का सिर्फ एक मतलब है कि ही इज ए सॉल्वेंट, ही इज नॉट इंसॉल्वेंट. इसका पर्पज सिर्फ ये है. लेकिन उसकी जो अमाउंट कन्फिस्केट होती है वो फ्रॉम मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की प्राइस इतनी सफिशिएंट नहीं है उसकी, तो फिर जो है ही सेंट टू जुडिशियल लॉकअप फॉर सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 6 months. सर एक और सवाल है, जिस तरह वेस्टर्न जुरिस्डिक्शन में मल्टीपल काउंट्स पे जिस तरह चार्ज फ्रेम होता है, सेकंड डिग्री मैनस्लॉटर होता है, सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, और भी चीज हो सकती है, हमारी अपनी जुरिस्डिक्शन में क्या एक ही चार्ज एक दफा फ्रेम होता है या मल्टीपल, यानी Yes, देखें हमारे यहाँ भी हर ऑफेंस की जो है वो डिफाइन किया है, और अगर एक हायर ऑफेंस में, फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल आउट एग्जांपल देता हूँ, 302 में चार्ज फ्रेम हुआ, लेकिन ड्यूरिंग ट्रायल प्रूफ जो हुआ वो 337 या 324 प्रूफ हुआ, तो कोर्ट उसमें विदाउट फ्रेमिंग ऑफ चार्ज फॉर लेसर ऑफेंस उसको सजा दे सकती है एक्यूज को, लेकिन उससे ज्यादा हीनियस ऑफेंस में नहीं दे सकती. यानी 337 का चार्ज है तो 324 में कोर्ट सेंटेंस नहीं अबॉर्ट कर सकती. 337 का चार्ज है तो 302 में कोर्ट जो है कन्विक्शन नहीं अबॉर्ट कर सकती. लेकिन इसमें भी बहुत सारी एक्सेप्शंस है. फॉर एग्जांपल चार्ज 324 का है तो कोर्ट जो है उससे रिलेटेड जो लेसर ऑफेंस है उसमें तो पनिश कर सकती है, लेकिन एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस में पनिश नहीं कर सकती. डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए सेपरेट चार्ज का होना जरूरी है अगेंस्ट द एक्यूज्ड. ये 173 की रिपोर्ट किस टाइम पे आएगी? इधर ये 164 के बयान के बाद भी आ सकती है या पहले ही आना चाहिए? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है. वे जो 173 में टाइम प्रोवाइडेड है वो 14 डेज का है आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, और उन 14 डेज में फर्दर 3 डेज टाइम दिया जाता है, यानी 17 डेज टाइम है, जिसमें इंटरिम रिपोर्ट जो है वो आनी जरूरी होती है एज पर. जी सर, आइडेंटिफिकेशन परेड होती है जब क्रिमिनल ऑफेंस में, तो वो उसकी प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आता है. अगर मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करता है कोई किसी को क्रिमिनल, तो बाद में वो एक्यूज साबित नहीं होता कि मुजरिम है, तो वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं, ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं है. मजिस्ट्रेट के सामने जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, मजिस्ट्रेट इज बाउंड टू मेंशन इट ऑन द डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू व्हिच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड. उसमें देखें जो फॉर एग्जांपल एक्यूज कोई ऑब्जेक्शन देता है तो वो ऑब्जेक्शन पार्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है. फिर सेकेंडली जो विटनेस है वो तो मेंशन करना उसके लिए जरूरी है अगर एक से ज्यादा मुलजमान है और उनका डिस्टिंक्ट रोल है, तो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन विद रेफरेंस टू रोल ऑफ द एक्यूज. कि ये जो एक्यूज था, फॉर एग्जांपल एफआईआर में उसने कहा कि ये 3 आदमी थे जिन तीनों के हुलिये फला हैं, और तीनों ने, एक ने शलवार कमीज पहनी थी, एक ने शॉर्ट्स पहनी थी, एक ने पेंट शर्ट पहनी थी,
और एक के पास 30 बोर पिस्टल था, एक के पास 12 बोर गन थी, एक के पास क्लशिनकोव थी। एक ने फायर किया जो कि फलां जगह लगा, दूसरे ने पैसे छीने, तीसरे ने जो है यरगमाल बनाया। तो वो फिर आइडेंटिफाई ये नहीं करेगा कि ये मेरा मुलजिम है, उससे क्योंकि क्लियर नहीं होता कि विच काइंड ऑफ रोल वाज प्लेड बाय द एक्यूज, तो वो आइडेंटिफिकेशन विद रेफरेंस टू रोल होगी कि ये वो आदमी है जिसके पास गन थी और इसने यरगमाल बनाया और इसने फलां, इसने गोली मारी है, इसके पास क्लशिनकोव थी, इसने शलवार कमीज पहनी हुई थी। तो ये वो उसको विद रेफरेंस टू रोल उसने करना होगा। और मजिस्ट्रेट जो है ये कोई प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं है, मजिस्ट्रेट साहब जो भी होंगे वो उसको पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाएंगे। ठीक सर, अगर वो उसको गलत आइडेंटिफाई कर लेता है किसी वजह से भी, बाद में बंदा क्विट हो जाता है, तो उसके खिलाफ वो सू कर सकता है? हाँ, सू तो कर सकता है बिल्कुल। हाँ, टॉर्ट में वो बिल्कुल मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में वो उसको सू कर सकता है जी। हर किसी केस में अगर 4 एक्यूज हो, 3 एब्सकॉन्डर हो और एक की डेथ कस्टडी में हो जाए, फिर इस केस को कैसे चलाया जाए? देखिए, वो जो एब्सकॉन्डर होगा, जो जिसकी डेथ हो जाएगी, उसकी हद तक तो प्रोसीडिंग्स अबेट हो जाएंगी और जो एब्सकॉन्डर हैं उनकी हद तक 512 सीआरपीसी में जो एविडेंस है वो सिक्योर हो जाएगी। जब वो पेश होंगे तो वो जो 512 सीआरपीसी की एविडेंस है वो सारी उनके खिलाफ दोबारा पेश होगी। सिक्योर करने का मकसद ये है कि अगर उन विटनेसेस में से किसी की डेथ हो जाती है तो वो जो 512 वाला जो उसका स्टेटमेंट होगा, विदाउट क्रॉस एग्जामिनेशन वो मनोवन उसके हद तक पढ़ा जाएगा। और उनकी प्रॉपर्टी जो है वो अटैच होगी? जी जी, 87 के बाद 88 का प्रोसीजर यही होगा। जो एब्सकॉन्डर हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, अब वो एब्सकॉन्डर नहीं रहे, नाउ दे आर विल बी टर्म्ड एज ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच होगी अंडर सेक्शन 88 ऑफ सीआरपीसी। तो स्टेटमेंट कोर्ट के बारे में था सर, अगर वो स्टेटमेंट कोर्ट में अपनी फेवर में जा देता तो उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो जाती है, तो उसकी सर क्या वैल्यू होगी? उसकी वही वैल्यू है जो कि किसी भी विटनेस की वैल्यू होती है। उसमें कोर्ट उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखेगी ऑन द टचस्टोन ऑफ इंटायर मटेरियल, उसको जक्सटापोजिशन में देखेगी विद द एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन। उसकी कोई लेसर वैल्यू नहीं है, उसकी भी उतनी एज पर लॉ वैल्यू है जो कि प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की है। सर, ये डिस्चार्ज और रिलीज में क्या तरीके, जिस तरह सेक्शन 63 और 169 में जो डिस्कस, खड़े होकर इस क्वेश्चन के लिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ। जी जी सर ये डिस्चार्ज और ये रिलीज में क्या तरीके, जिस तरह सीआरपीसी सेक्शन 63 और 169 में जो इस्तेमाल हुआ है? हाँ, ये जो डिस्चार्ज है ये एक्विटल नहीं है। अगर उस टाइम एविडेंस डेफिशिएंट है तो कंसर्न कोर्ट ऑफ एरिया मजिस्ट्रेट या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर 169 में और कोर्ट जो है वो सेक्शन 3 में डिस्चार्ज कर सकता है एक्यूज को। ट्रायल कोर्ट भी बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज 265D में अगर ऑर्डर पास करेगी कि इस वक्त तक इसके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस नहीं है टू फ्रेम ए चार्ज, तो एक्यूज कैन बी डिस्चार्ज। तो वो जो डिस्चार्ज एक्यूज्ड है वो क्योंकि एक्विटल नहीं है, सब्सिक्वेंटली अगर उसकी हद तक कोई मटेरियल आता है तो ही कैन बी समन्ड बाय द कोर्ट टू फेस द ट्रायल। एक्विटल की सूरत में तो दोबारा उसको समन उस केस में नहीं दिया जा सकता until and unless that acquittal order is upset by the superior courts। लेकिन डिस्चार्ज एक्यूज जो है वो सिर्फ टेम्परेरी रिलीज है फ्रॉम द बॉन्ड, ही कैन बी समन्ड लेटर ऑन बाय द सेम कोर्ट। सर, ये हम 265 के लगाते हैं 561 के साथ, 561A के साथ, तो सर अगर एक्विटल हो जाए या क्वॉशमेंट हो जाए तो मतलब दोनों में डिफरेंस क्या होगा? एक बंदा अगर एक्विट हो गया तो उसका रिकॉर्ड भी खत्म हो जाएगा या क्वॉशमेंट से ही रिकॉर्ड? नहीं, दोनों सूरतों में वो रिकॉर्ड तो खत्म हो गया ना उसकी हद तक। आप दो चीजें मिक्स कर रहे हैं। 265 के 561A के साथ नहीं लगती। 561A आर इनहेरेंट पार्ट्स ऑफ द हाई कोर्ट to prevent the abuse of process of law। 265K is a power of trial court to acquit the accused at any stage of the trial or proceedings। यानी after submission of 173 report at any stage, court अगर समझती है कि there is no substance against the accused which may lead towards his conviction, तो he can be acquitted। तो जो quashment की पार्ट्स हैं वो दो grounds हैं before the high court। Number 1, accept the allegations leveled in the FIR and no criminality is spelling out, though that contents of the FIR does not disclose any offence।
तो वो है, एंड सेकंड है जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट के ऊपर कि इफ देयर इज एनी जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट तो तब भी एफआईआर क्वाश होती है। एक्विटल 265 के डिफरेंट ग्राउंड्स हैं, उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ कन्विक्शन देखी जाती है। सूरत में जो कोर्ट है वो फोरसी करती है फ्यूचर कि ये मटेरियल है अगेंस्ट द एक्यूज, इसको पार्ट ऑफ रिकॉर्ड अगर बनाया जाए तो तब भी देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कन्विक्शन। सर लेकिन उसका रिकॉर्ड तो थाने में रहता है सर। नहीं, वो तो एफआईआर देखिए ना, थाने में अगर क्वाशमेंट होगी तो तब भी उस सूरत में भी रिकॉर्ड तो एफआईआर है ना, एफआईआर कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट एनी पर्सन। उसके साथ जब कन्विक्शन आ जाएगी तो वो फिर रिकॉर्ड होल्डर होगा। अगर एक्विटल हो गई है तो फिर तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, वो तो एफआईआर तो खैर 100 साल तक तो रहती है ना, वो डॉक्यूमेंट रहता है, लेकिन उसके साथ फिर आ जाता है कि इसमें ये एक्विट हो गया है, तो इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड। सर सेक्शन 172 की रिपोर्ट आ गई, पुलिस अपनी तरफ से रिपोर्ट फाइनल कर देती है, इंक्वायरी स्टार्ट होती है, देन ट्रायल स्टार्ट होता है। लेकिन जब एक सिनेरियो में सर की दो क्वेश्चन मेरे पास, पहले सिनेरियो में पुलिस को लगता है कि और इसमें इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, और उसके पास कोई नया एविडेंस आता है, देन एक अलग 173 का कंप्लीट चलान आएगा जी। अगर सेकंड क्वेश्चन, अगर 173 के रिपोर्ट में लैप्सेस रह जाएं ऑन द साइड ऑफ एक्यूज, मतलब उसने एविडेंस सॉरी कंप्लेनेंट साइड था, उसने एविडेंस इन्वेस्टिगेशन उसने कंप्लीट नहीं किया, हम 22 से में जाते हैं या सारे, फिर भी एक रिपोर्ट आ जाती 173, उसके बाद भी सर हमें क्या उसकी कंप्लेंट। देखिए, मैंने जब 173 को मैंने डिस्कस किया था तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये कोई हतमी रिपोर्ट नहीं होती, इवन वर्ड कंप्लीट भी लिखा हो तो तब भी सिंस इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग प्रोसेस, तो ये सप्लीमेंट्री सब्सिक्वेंट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी कैन बी सबमिटेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और देयर में बी मेनी रीजंस ऑफ दैट। नया मटेरियल आएगा तो नई रिपोर्ट आ सकती है, उसमें कोई ऐसा एम्बार्गो नहीं है, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अनाउंसमेंट ऑफ जी जी, किसी स्टेज पे। सर ये जो हैप्चुअल ऑफेंडर होते हैं जैसे 490 के केसेस होते हैं, इसमें एक केस का एविडेंस दूसरे केस में इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, उसकी कन्विक्शन जो है अगर पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बनी है, वो एक क्वेश्चन उससे पुट होगा तो उसको बिल्कुल यूज किया जा सकता है अगर वो प्रीवियसली कन्विक्ट है तो बिल्कुल। वैसे अगर उसका ट्रायल चल रहा है तो उसमें हाँ नहीं, वो तो फिर प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज इन फेवर ऑफ एक्यूज, तो वो उसकी हद तक। सर एक क्वेश्चन और था मुझे, 496 और 498 सेक्शन है ना, क्या इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। 496 और 498 ऑफ सीआरपीसी, ये मेरे ख्याल से पब्लिक प्रोसिक्यूटर से ये जो सेक्शंस हैं, ये 494 तो उसी से डील करता है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए 494 जो है ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की पार्ट से डील करता है। ये है चैप्टर नंबर 38, इफेक्ट ऑफ विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। सर 496 और 498। अच्छा, ये तो बेल है। 496 डील्स विद बेलेबल ऑफेंसेस। 498 से जो जज मेड लॉ है जो डेवलप हुआ हदायतुल्लाह शाह वर्सेस क्राउन पीएलटी 1947 से, वो एक कॉन्सेप्ट दिया गया प्री अरेस्ट बेल का कि जो एक्यूज, ये जरूरी एक इनोसेंट है जो कि मेलिशियसली इम्प्लीकेट हो गया, पुलिस ने कर दिया, प्रोसिक्यूशन ने कर दिया, तो क्या उसके पास कोई राइट नहीं है कि बगैर गिरफ्तार हुए वो रिलीज हो जाए? क्योंकि 497 में तो देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीज ऑन बेल आफ्टर अरेस्ट, तो लेकिन अगर इनोसेंट है तो वो भी उसका जेल में जाना जरूरी है या उसका हैंडकफ्स में पुलिस कस्टडी में जाना जरूरी है? तो फिर वो राइट ऑफ लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जज मेड लॉ आया 498 रेड विद सेक्शन 497 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें प्री अरेस्ट बेल की पास दी गई सेशंस कोर्ट को। सेशंस के पास भी ये पास हैं, हाई कोर्ट के पास भी ये पास हैं, और उसके बाद जो है ज़ाहिर अपील में सुप्रीम कोर्ट के पास भी। तो ये बिफोर अरेस्ट का कॉन्सेप्ट है इन 498 रेड विद 497 ऑफ सीआरपीसी। जो 496 सीआरपीसी है
it deals with bailable offenses. जब भी कोई बेलेबल ऑफेंस का एक्यूज पकड़ा जाएगा तो पुलिस ऑफिसर उसको थाने में भी छोड़ सकता है, लेकिन whenever he is presented before the court of magistrate तो he shall be released on bail. उसने उसी वक्त रिलीज होना है, श्योरिटी बॉन्ड्स का ऑर्डर पास होना है फॉर हिज रिलीज. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 496. सेक्शन 498 ए में है कि जो प्रेजेंस जो है वो नेसेसरी है. वो उसमें एक क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर का होना बेल बिफोर अरेस्ट के लिए जरूरी है. लेकिन एक बंदा का नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन वो हैप्चुअल ऑफेंडर है और इलाके में जैसे होता है इसका नाम है कि ये चोरियां डकैतियां ऐसे ऑफेंस करता है, तो क्या वो भी करा सकते हैं बेल बिफोर? देखें, आप दो चीजें कंफ्यूज करते हैं. नाम होना जरूरी नहीं है, किसी आदमी के अगेंस्ट एफआईआर का होना जरूरी है. अगर एफआईआर लॉन्च हो गई, उसका नाम नहीं है, लेकिन सब्सिक्वेंटली ही इज इम्प्लीकेटेड इन द केस, तो अब उसके खिलाफ एफआईआर है तो वो प्रीवियस बेल कोई भी करवा सकता है. कंफर्म होना ना होना दैट इज ऑलटुगेदर डिफरेंट क्वेश्चन. इट विल बी सीन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस के अब तो खैर मेलाफाइड से आगे कोर्ट्स चली गई हैं. एलिमेंट ऑफ फर्दर इंक्वायरी इज ऑलवेज सीन एट द टाइम ऑफ कंफर्मेशन ऑफ बेल के वो स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस क्या है जिसकी वजह से पुलिस इसको अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है. लेकिन जो मेन कंसिडरेशन रही हैं कोर्ट की फॉर कंफर्मेशन ऑफ बेल बिफोर अरेस्ट वो एलिमेंट ऑफ मेलाफाइड है ऑन द पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन. 498 कहता है कि एट द टाइम देयर शुड बी एफआईआर और एक्यूज की जो प्रेजेंस है वो एट द टाइम ऑफ बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो मैंडेटरी है. उसके एब्सेंस में ये नहीं है कि एक्यूज घर बैठा हुआ है और काउंसिल फाइल करेगा और वो जो है इंटरम बेल हो जाएगी. उसके लिए एक्यूज का अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट जो है वो मैंडेटरी. एफआईआर से लेकर कन्विक्शन तक प्रैक्टिकली कितना टाइम लगता है और दर्ज कितना है और लगता कितना? देखिए, जो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के मुताबिक जो कॉन्सेप्ट है क्रिमिनल केसेस का वो डे टू डे ट्रायल का कॉन्सेप्ट है. प्रोलॉन्ग्ड जो ट्रायल्स होते हैं उनको लॉ हमेशा डेप्रिकेट करता है, लेकिन हमारे यहाँ डिले होती हैं. जल्दी भी ट्रायल, कई ट्रायल्स हैं जो 6-6 दिन में हमने कंप्लीट किए हैं मर्डर केसेस में, और कई ट्रायल्स जो हैं वो साल. इसमें कुछ एक्यूज, कोई प्रोसिक्यूशन, विटनेसेस, सबका लेथार्जिक जो एटीट्यूड है वो काउंट करता है. टुगेदर विद दैट जो है वो ट्रायल डिले होते हैं. लेकिन जो लॉ है, लॉ में डे टू डे ट्रायल का कॉन्सेप्ट है. सर, हमारी पुलिस के पास भी जो है कुछ इनहेरेंट पावर्स हैं, जिस तरह इमरान खान के अरेस्ट वारंट्स जो हैं वो यहाँ पे जारी हुए. मेरा सवाल ये है कि पुलिस आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन जाके भी यानी मतलब अक्यूज को अरेस्ट कर सकती है या कोई प्रोसीजर कानून में बताया सेक्शन गया? 75, सेक्शन 76, सेक्शन 77, सेक्शन 78, 79 ये आप सारे पढ़िए. एक तो वारंट जो इम्प्लीमेंट होता है, जो वो इशू होता है, वो पूरे मुल्क में कहीं भी एग्जीक्यूट हो सकता है. लेकिन जब आउटसाइड जुरिस्डिक्शन का वारंट होगा तो उसके दो तरीके हैं. एक, जिस शख्स को कोर्ट चाहे तो यहाँ के किसी पुलिस ऑफिसर को इंटरेस्ट कर सकती है वो वारंट, और अगर इधर के पुलिस ऑफिसर को इंटरेस्ट होगा वो वारंट तो वो पुलिस वाला जाएगा कंसर्न जिस भी एरिया में, उस थाने में उसको जो है वो रजिस्टर करेगा अपने आमद जो है, उस वारंट की इंडोर्समेंट होगी और उसकी वहां की पुलिस उसको एकम्पनी करेगी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट. दूसरा तरीका ये भी है कि यहाँ की कोर्ट डायरेक्टली वहां के कोर्ट को या वहां के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी ये इंटरेस्ट कर सकती है कि ये वारंट जो है ये आप एग्जीक्यूट करके बंदा मेरे सामने पेश करें. तो वो दोनों सूरतें जो हैं हो सकती सर, ये अक्सर थेफ्ट की केसेस में पुलिस रिपोर्ट सबमिट नहीं करवाती. तो जब कोर्ट के थ्रू हम रिपोर्ट मांगते हैं पुलिस से तो वो कहते हैं कि एफआईआर अदम पता हो चुकी है. तो ये एक नई टर्म मेरे लिए, मुझे इसका पता नहीं है, इसके पीछे कोई लॉ मौजूद है या पुलिस? देखिए, अदम पता का दो चीजें आती हैं. एक तो जो कंप्लेनेंट है वो आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर वो डिसअपीयर हो जाता है और वो पुलिस के सामने आता ही नहीं और नेसेसरी जो डिटेल्स हैं वो नहीं देता. लेकिन ये अदम पता वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कोई इतना मकबूल कॉन्सेप्ट नहीं है. व्हेनेवर एफआईआर इज लॉन्च्ड
तो जो भी सिचुएशन है, कंप्लेनेंट आ रहा है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा। इंटरम रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि वट एवर इट इज, वो जो रिपोर्ट है चाहे उसमें कुछ भी नहीं है, यानी कोई भी उसके बाद कंप्लेनेंट ने नेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, एक्यूज के मुतल्लिक उन्हें पता नहीं चला, कंप्लेनेंट भी एरिया छोड़ के भाग गया, ये भी क्लियर नहीं है कि क्या क्या उसके घर से चोरी हुआ था, मजीद उसने कोऑपरेट नहीं किया, घर छोड़ के किसी और को पोजेशन घर का दे दिया, कोई टेनेंट था और कहीं और चला गया और कोई पता नहीं है, तो ये भी सारी रिपोर्ट जो है ये कोर्ट को उसने 173 की रिपोर्ट में सबमिट करनी है, इंटरम रिपोर्ट में कि ये एफआईआर लॉन्च हुई। मैं पहले ही दिन जब मौके पे गया तो आफ्टर लॉजिंग ऑफ द एफआईआर कंप्लेनेंट घर छोड़ के जा चुका था। अगले दिन गया तो पता चला कि उस घर का पोजेशन जो है वो नए टेनेंट्स आ गए हैं, कंप्लेनेंट का अपना नंबर बंद है, वी आर अनएबल टू प्रोसीड, तो वही रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो सकती है। और सर इन्वेस्टिगेशन का प्रॉपर एक डिटेल्ड मैकेनिज्म या मोड मौजूद है लॉ में? जी, पुलिस रूल्स में मौजूद है, लेकिन अभी तो देखिए ना, इन्वेस्टिगेशन कोई प्रोसेस का नाम नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जो है, एक मैंने जैसे पहले बात की, इसका मकसद है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अब किस केस में कलेक्शन ऑफ एविडेंस की क्या नेचर हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ एवरी केस। कुछ चीजें हैं जो कि अगर साइबर क्राइम है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट होगी, अगर चोरी का केस है तो उसका रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, मर्डर है तो उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो हर केस के नेचर के मुताबिक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने वो मोड अडॉप्ट करना है कि उसने, ये उसकी विल है कि किस तरीके से उसने एडमिसिबल एविडेंस कलेक्ट करनी है, विच इज टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। इन्वेस्टिगेशन सर कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है? नहीं, इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती, लेकिन कोई पुलिस की एक्सेस हो तो जस्टिस ऑफ पीस जो है कैन इंटरफेयर इन केस ऑफ एनी एक्सेस ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस। लेकिन कोई कोर्ट ऑफ लॉ आईओ को ये नहीं कह सकती कि तुम इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करो। इन्वेस्टिगेशन फेज जो है दैट इज आउटस्टेड फ्रॉम द डोमेन एंड परव्यू ऑफ कोर्ट्स। सर, अगर कोई एक्यूज 340 सब सेक्शन 2 में अपने फेवर में स्टेटमेंट देना चाहता है, मतलब एविडेंस जो है ना प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो सर इसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या होगी सर? वो पहले एक दोस्त ने ये क्वेश्चन किया था, वही वैल्यू होगी जो कि प्रोसिक्यूशन की एविडेंस की होती है। ये नहीं होगा कि जो प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस प्रोड्यूस की है वो आला एविडेंस है और जो डिफेंस कर रहा है प्रोड्यूस वो अदना एविडेंस है, ऐसा नहीं होगा। उसकी स्ट्रेंथ देखी जाएगी और कोर्ट जेक्स्टा पोजीशन में दोनों एविडेंस को सामने रख के तो फिर करेगा। जी प्लीज। सर, एक एक्यूज्ड है वो बेल पर है और वो अपीयर नहीं होता बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, वो नॉन प्रोसिक्यूशन होता है, तो अरेस्ट के बाद ये दोबारा बेल दायर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप प्री अरेस्ट में गायब हो गया या नहीं बेल, जो भी सिचुएशन है, तो आफ्टर अरेस्ट इटसेल्फ प्रोवाइड्स ए फ्रेश ग्राउंड। ये वही दो ही सिचुएशंस है ना, एक तो पेश नहीं हुआ, इश्तिहारी हो गया, दूसरा प्री अरेस्ट बेल फाइल की एंड ही फ्लेड अवे फ्रॉम द कोर्ट, एंड थर्ड एंड आफ्टर ही वाज कॉट बाय द पुलिस एंड आफ्टर अरेस्ट बेल जो है उसके अपना वो है वो देखा जाएगा, उसको बेल हो सकती है। आप सर एक प्रोपोजिशन है, अगर आप जी प्लीज। सर एक एम्प्लॉई है अंडर द प्राइवेट कंपनी, उसकी सैलरी रिटेन करी हुई उसकी कंपनी वाले ने, और उसने रेजिग्नेशन दे दिया था ऑन टाइम। अब उसने क्या किया है, जवाब में लैपटॉप रिटेन करके रखा है कंपनी का। सर व्हाट लीगल डिफेंस ही कैन टेक टू अवॉइड द क्रिमिनल प्रोसीडिंग या एफआईआर को अवॉइड करने? देखिए, उसको जो है सूट फॉर रिकवरी में जाना चाहिए। राइट, प्राइवेट कंपनी है तो कि ये इन्होंने मेरी सैलरी देनी है, और साथ वो मेंशन करे कि ये जो लैपटॉप है ये मैंने अपने पास रखा हुआ है और इसकी प्राइस ये है, मेरी सैलरी इतनी है। और अगर वो जो है दो चीजें मांग लेना, या फुल सैलरी मांगे और साथ के कि मैं ये उस सूरत में वापस करूंगा, या ये डिडक्ट करके इसकी अमाउंट और बकाया मुझे रकम दे दीजिए। बट जब वहाँ पे मेंशन करना कि लैपटॉप मेरे पास है, तो सर वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होगा? नहीं, ये मतलब ब्रीच ऑफ edit ट्रस्ट करना- नहीं, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है।
ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये है कि वो लैपटॉप जो है, जो कंपनी ने उसको अपने इस्तेमाल के लिए उस वक्त दिया था, वो खुद रिटेन करने की बजाय वो किसी को आगे बेच दे, तो दैट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सर ये सेक्शन प्रोक्लेम ऑफेंडर है सर, अब वो अपील होना चाहता है बिफोर ही वांट्स टू जॉइन ट्रायल, सर वो पहले अपना प्री रेस्ट बेल कराएगा या फिर पहले वो ऑर्डर सस्पेंड कराएगा? नहीं, जब वो प्री रेस्ट बेल कराएगा व्हेन ही विल अपीयर बिफोर द कोर्ट, तो ऑटोमेटिकली जो उसके वारंट्स हैं वो जो है वो तो खत्म हो जाएंगे। प्री रेस्ट बेल वो ऑर्डर सस्पेंड करने के लिए अलग नहीं बिल्कुल भी नहीं, प्री रेस्ट बेल करवाएगा वो। जब इंटरम बेल का ऑर्डर होगा तो उस इट इम्प्लॉय एवरीथिंग कि उसके अब वारंट नहीं है, कोर्ट ने उसको प्रोटेक्शन दे दी जी। देखिए 497 सब सेक्शन 1 में 2 किस्म के ऑफेंसेस प्रोवाइडेड हैं। वो ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट 7 इयर्स या उससे कम है उसको कहते हैं नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करते हैं। जो 7 साल से ज्यादा जिनकी सजा है, 10 साल या उससे ऊपर जिनकी पनिशमेंट प्रोवाइडेड है, वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में ऑफेंसेस फॉल करते हैं। तो नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज जो है बाय वर्च्यू ऑफ जजमेंट्स, ये इटसेल्फ सफिशिएंट रीजन है। 497(1) भी कहता है इसमें कि नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में बेल इज ग्रांटेड एज ए रूल और रिफ्यूजल इज एक्सेप्शन। तो इसी तरह जो प्रोहिबिटरी क्लॉज में ऑफेंसेस फॉल करते हैं उसमें अगर एलिमेंट ऑफ फर्दर इंक्वायरी नहीं है तो फिर रिफ्यूजल ग्रांट ऑफ बेल इज एक्सेप्शन, उसमें उसका फिर पैरामीटर्स दिए हुए हैं 497(1) में। या फिर फर्दर इंक्वायरी का केस होगा तो तब उस सूरत में उसकी बेल होगी, या फिर वो सिक है, इन्फॉर्म है, या फीमेल एक्यूज्ड है, या वो जुवेनाइल ऑफेंडर है, तो उस सूरत में उसकी फिर बेल। कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो हैं वो 345 सीआरपीसी में और सेक्शन 338E पाकिस्तान पीनल कोड में वो उनका कॉन्सेप्ट मौजूद है। शेड्यूल है सीआरपीसी का, उस शेड्यूल में ये प्रोवाइडेड है कि कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं और कौन से ऑफेंसेस नॉन कंपाउंडेबल हैं। जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं उसमें जो एग्रीव पार्टी है उनके पास ये राइट है। मर्डर की सूरत में लीगल एयर्स ऑफ दी जो डिसीज्ड हैं उनके पास राइट है टू कंपाउंड एन ऑफेंस, और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस जो है दैट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट एंड आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ कंप्रोमाइज एक्यूज इज एक्विटेड। अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आई है जिसमें वो कहते हैं कि जो मेरिट पे एक्विटल है और जो स्टेटस एक्यूज का मेरिट पे एक्विटल की सूरत में है वो आफ्टर कंप्रोमाइज एक्विटल को उस दर्जे पे नहीं रखा जा सकता। काजी फायज साहब की अभी एक लेटेस्ट जजमेंट है इस क्वेश्चन के ऊपर भी, लेकिन जो इफेक्ट होगा कंप्रोमाइज का वो कंपाउंडिंग की सूरत में, वो सॉरी एक्विटल की सूरत में होगा। सेकंड, जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं वो मिटिगेशन तो हो सकती है लेकिन सोलली बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये ऑफेंसेस नॉन कंपाउंडेबल है एंड कंप्लेनेंट हैज एंटर्ड इनटू कंप्रोमाइज, तो वो सफिशिएंट नहीं है टू अर्न एक्विटल। उसके लिए कुछ और भी चीजें लानी पड़ेंगी जिससे कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ कन्विक्शन मौजूद नहीं है। प्री बार्गेन इज ऑलटुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जी नहीं बिल्कुल नहीं, ये प्री बार्गेन का जो कॉन्सेप्ट है ये नैब लॉज में आया था जिसमें एक्यूज जो है बिफोर इनिशिएशन ऑफ ट्रायल जो है वो ही वॉलंटरीली अपीयर्स कम फॉरवर्ड और वो कहता है कि मैंने जो स्टेट को नुकसान पहुंचाया है वो मैं पूरा करता हूं, और वो एक प्ली बार्गेन होती है जिसमें नैब अथॉरिटीज और एक्यूज एक सेटलमेंट पे पहुंचते हैं कि ये इतनी अमाउंट अगर ये जमा करवा दे तो देन ही विल अर्न एक्विटल। तो वो फिर उसमें वो पैसे जमा करवाता है। जो कंप्रोमाइज है उसकी तो अपनी टर्म्स होती हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकती है। सर ये भी पॉसिबिलिटी है कि एफआईआर में एक कोई सीरियस क्राइम अलेज किया गया है बट ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन दे ड्रॉप द चार्जेस, सो ऐसा क्या प्रोसिक्यूशन कर सकती है या इट हैज टू स्टे? बिल्कुल, वो तो स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस है जिसके मुताबिक देखा जाएगा कि इसके वो जो एफआईआर में तो सिर्फ एलिगेशन है ना सीरियस ऑफेंस का,
لیکن پتہ چلتا ہے کہ یہ ایلیگیشن جو ہے یہ درست نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی دیٹ سیکشن کین بی سبسٹیٹیوٹڈ ایون بائی دی انویسٹیگیٹنگ آفیسر. سر یہ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 سے ریلیٹڈ پرسن ہے, اس ایکٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ایکٹ صرف ان کے لیے بنایا گیا ہے جو ہیبیچوئل لینڈ گریبرز ہیں. جی ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس میں پہلے جو 2007 یا اس سے پہلے جو لا تھا وہ یہی تھا کہ یہ صرف لینڈ گریبرز کی حد تک ہے. تو اس کے بعد سپریم کورٹ کی ججمنٹس آئیں, ایپیکس کورٹ میں اس پہ جو ہے بہت سارا کیس لا ڈیولپ ہو چکا ہے. اینی پرسن کی حد تک ہے, whoever dispossess the other person from the property without lawful justification, تو اس کے لیے جو ہے illegal dispossession act can be invoked. bail before arrest majority times confirm نہیں ہوتی, اس کے پیچھے بیسک سائنس کا ہے کہ کیوں majority of the time. یہ اس لیے کہ اس میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو وہ شخص ریکوائر ہوتا ہے فور دی پرپز آف انویسٹیگیشن. وہ کیسز جس میں ریکوری انوالو ہو. اب ریکوری جو ہے وہ وداؤٹ اریسٹ جو ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے, کیونکہ ایکیوز پھر اس صورت میں کوپریٹ نہیں کرتا, ریکوری افیکٹ نہیں کرواتا. تو ان کیسز میں, اور سیکنڈلی پری ریسٹ بیل جو ہے یہ ایکسٹرا آرڈنری فینومینا ہے جو کہ لا بھی کہتا ہے. تو بہت ایکسیپشنل کیسز میں پری ریسٹ بیل جو ہے وہ گرانٹ ہوتی ہے. سر ایک کمپرومائز اگر دیت کے اندر ہو رہا ہے تو یوزلی ججز کی ججمنٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ کمپرومائز فیئر ہونا چاہیے. تو کہیں پہ مجھے یہ نہیں مل رہا تھا کہ کیا گراؤنڈز ہوتے ہیں ایک کمپرومائز کو ریزنیبل کرنے کے لیے. سو اگر جیسے دیت کے اندر کمپرومائز ہو جاتا ہے تو ججز یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر مائنرس کے انٹرسٹ انٹیکٹ نہیں ہے, آپ کو مائنرس کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا ہے. بٹ کہیں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کمپرومائز فیئر ہونا چاہیے. تو کیا گراؤنڈز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ججز فیئر کرتے ہیں؟ دیکھیں جو بدلے صلح ہے مرڈر کی صورت میں, اس میں جو دیت اماؤنٹ ہے اس کی منیمم کوانٹٹی جو ہے وہ دیٹ از پرووائڈیڈ ان لا انڈر سیکشن 323 آف پاکستان پینل کوڈ, جو کہ 6666 گرام سلور جو ہے اس کے ایکویلنٹ ہے. لیکن یہ منیمم اماؤنٹ ہے, اس سے زیادہ دیر از نو لمٹ ایٹ آل. اس سے ڈبل ٹرپل 100 ٹائمز ہو سکتی ہے. اٹ ڈپینڈس آن دی, یہ پارٹیز کا سیٹلمنٹ ہے, اس سے کم نہیں ہو سکتی. نمبر 1. سیکنڈ جو اصل پری ریکویزٹ ہے کمپرومائز کا, اٹ شوڈ بی فری فرام اینی کائنڈ آف پریشر بیسڈ آن دی فری ول آف آل دی پارٹیز. تھرڈلی مرڈر کی صورت میں آل لیگل ایئرز کا کمپرومائز ہوتا ہے. ایک بھی اگر لیگل ایئر جو ہے وہ اس کمپرومائز میں نہیں آتا تو دیر از نو کمپرومائز ایٹ آل. تمام آئیں گے فری ول کے ساتھ آئیں گے اور وداؤٹ پریشر جو ہے if they will appear before the court, تو کورٹ نے یہی 2-3 چیزیں دیکھنی ہیں تب کورٹ الاؤ کرتی ہے. جو مائنرز کے رائٹس کی پروٹیکشن کی بات ہے تو جو مائنرز ہیں ان کے اماؤنٹ جو ہے ان کے گارڈین کو نہیں دی جا سکتی. ان کی حد تک جو ہے سیپریٹ اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے یا جو سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں ان کے نام کے لیے جاتے ہیں جو کہ ان کے نام پہ ڈپازٹ ہوتے ہیں. اور اگر گارڈین وہ یوز کرنا چاہے تو اسے گارڈین کورٹ سے جو ہے پرمیشن لینی پڑتی ہے اور اس کے بعد جو ہے بتانا پڑتا ہے کہ ہاؤ دیٹ اماؤنٹ از بینگ یوٹیلائزڈ فار دی ویلفیئر آف دی مائنر. سر اس میں میرا فردر یہ کوشچن ہے کہ جو ججمنٹ میں پڑھی تھی اس کے اوپر یوزلی ویو آف نہیں ہوتی ہے, بٹ اس کیس میں دیت ویو آف ہو گئی تھی. تو وہاں پہ جو منیمم اماؤنٹ ریکوائرمنٹ تھی کمپرومائز کے اندر مینشن کرنا وہ مسنگ تھی. لیگل کے مائنرس کے کوئی رائٹس نہیں تھے اس کو. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں جو مائنرس ہیں ان کو جو اماؤنٹ ملے گی وہ ایز پر دیئر شیئر ملے گی. یہ پوری اماؤنٹ جو ہے اگر جو ایڈلٹ ہے وہ اپنا جو بدلے صلح کا رائٹ ہے وہ ویو کر سکتے ہیں, لیکن جو مائنرس ہیں ان کی حد تک جو دیت کا رائٹ ہے وہ ویو نہیں ہو سکتا. ایڈلٹس اپنا رائٹ ویو کر سکتے ہیں اور جو ان کا حصہ بنے گا مائنرس کا وہ ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا. یہ اس کے حد سے ہٹ کے کچھ اور پروسیجر نہیں ہے. I do not know which kind of judgment you have read, لیکن ایسا میری نظر سے کبھی بھی نہیں گزرا. سر ہم اس کے اوپر کام کر رہے تھے تو مجھے سے ایگریمنٹ ججمنٹ مل گئی تھی جس کو پروف بھی کر دیا تھا. سو اس میں مجھے صرف یہی ایک کوشچن تھا کہ کمپرومائز اگر دیت ویو آف ہو گئی ہے تو کمپرومائز نہیں. دیت جو ہے وہ ویو آف جو ہے وہ مائنرس کی حد تک ہو ہی نہیں سکتی. جو میجرس ہیں جو ایڈلٹ ہیں ان کی حد تک ویو آف ہو سکتی ہے, مائنرس کی حد تک نہیں ہو سکتی. نہیں
Any other question? Yes. سر آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائبر کرائمس میں کافی اضافہ ہو رہا ہے سر اس کی لیجسلیشن جو ہے وہ اس کے اوپر سیپریٹ لیجسلیشن ہے یا پروسیجر جو کرنی پروسیجر ہے نہیں پروسیجر تو سی آر پی سی کا ہی ہے لیکن ان کی انویسٹیگیشن اور ان کی لیجسلیشن پہلے تو تھا اس میں ای ٹی او الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس تھا 2002 تھا میرے خیال سے تو وہ بہت ویگ لا تھا اس کے اوپر تو ابھی پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ آیا ہے جو کہ بہت بہتر لیجسلیشن ہے ایز کمپیئر ٹو ارلیئر لا اس کی انویسٹیگیشن سائنٹیفک انویسٹیگیشن ہے پرائمریلی تو اسی کے اوپر جو ٹیکنیکل رپورٹس ہیں فورینسک رپورٹس ہیں آف سیٹ ایکوپمنٹ یا ڈیجیٹل ڈیوائس تو وہ اس کے اوپر بیس کرتی ہے زیادہ ایویڈنس. Any other question? سر 249 میں جو اسٹاپیج پروسیڈنگ ہوتی ہے تو اس کو اگر ہم نے ریسٹور کروانا ہو تو وہ کون سے سیکشن یا کون سی صرف آپ ایک اپلیکیشن دیں گے انڈر سیم پروویژن آف لا کہ یہ جو پروسیڈنگس تھی یہ اسٹاپ ہو گئی تھی بیکاز کمپلینٹ واز ناٹ نون کہ وہ کدھر گیا اس کے ویئر اباؤٹ ور ناٹ نون ناؤ ہی از اویلیبل تو اس کو ریسٹور کیا جائے تو کورٹ ول ریسٹور ٹو پروسیڈنگ. شاہ صاحب ماشاء اللہ آپ بہت ایکسپیرینسڈ پولیس آفیشل ہیں آپ تو پھر کوئی ایسی چیز کچھ. تھینک یو جی. جمعہ ہے آپ بھی جمعہ پڑھیں. اٹ از ویری نائس ٹو سی یو اور انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ پریکٹیکل لائف میں کامیاب ہوں. اللہ کو کامیاب کریں. تھینک یو.